Okay, so now coming on to point number 8, and this is the MCQ that cells having most telomerase activity are the germ cells, but I also want to mention here कि tumor cells में जो है वो भी telomerase activity is very high, ठीक है, and this telomerase activity decreases in normal cells with aging क्योंकि हमारे पास जो telomere compartment है it gets shortened, ठीक है. Now what is telomere and what is the telomerase activity? I want to explain it a bit. सही है, telomerase activity, ठीक है. अब इसमें तीन चीज़ें याद कर लो कि ये थायमीन टी, एडेनिन ए एंड ग्वानिन जी की बेस सीक्वेंसेस की रिपीटिशन है विच इज अ टीलोमेरेज एक्टिविटी, ठीक है. टी टी ए जी ट्रिपल जी, ठीक है. ग्वानिन रीच सीक्वेंस. These are the telomeres are the sections of DNA found at the end of each chromosome which consist of the same sequence of bases repeated over and over again, ठीक है, 1500 to 3000 time, और as it goes on shortening with each डिविजन, तो उसमें फिर जो है सेल्स में ये छोटा होता जाता है, इवेंचुअली सेल्स विल डाई एंड दे विल नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट एनी मोर, एंड दैट्स द बेसिस ऑफ एजिंग, ठीक है. सही है. और कुछ सेल्स में इट कंटिन्यूज ऑन बीइंग एडेड लाइक द स्टेम सेल्स और ट्यूमर सेल्स. ओके, now primordial germ cells are derived from ectoderm. I just want to read the point first and then I will go towards the explanation. Primordial germ cells are derived from the ectoderm. Choose epiblast if an option. Okay, I will tell you why. Okay, in a while. Germ cells arise in the yolk sac at third week of intrauterine life. Okay, they originate from which of the following? Primordial germ cells are derived from epiblast. सही है. Though some investigators consider epiblast as a primitive ectoderm, hence ectoderm can be chosen as the right answer if epiblast was not among the options. ठीक है, बस इसका बेसिक मतलब ये है कि आपने प्राइमोडियल जर्म सेल्स कहाँ से आ रहे हैं, आपके पास एक्टोडर्म से आ रहे हैं, लेकिन अगर एपीब्लास्ट हो तो आपने उसको प्रेफर करना है. क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न है. हमारे पास जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स है वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक नहीं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से आते हैं जो कि एलेंटॉइस के बॉर्डर पर लाई कर रहा होता है. So that although is a derivative of epiblast, लेकिन वो जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक एंक्टोडर्म है उसका पार्ट नहीं होता, इसलिए एपीब्लास्ट के ऑप्शन को प्रेफर करना है, ठीक है, इफ इट कम्स इन ऑप्शंस, ठीक है. ओके, टीलोमेरेज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन जर्म सेल्स, ठीक है. जर्म सेल्स इनकॉर्पोरेट एट 6th वीक. ये स्टेटमेंट थोड़ी सी इनकम्प्लीट थी तो इसको कंप्लीट इस तरह कर ले कि इट इनकॉर्पोरेट्स इनटू गोनाड्स एट 6th वीक, ठीक है. वेयर आर दे इनकॉर्पोरेटिंग? इन द गोनाड्स. Primordial germ cells of the yolk sac migrate to the gonadal ridges in which week? 6th week, ठीक है. In embryo, I'm going to explain it. In embryo, primordial germ cells are formed at third week of development. Okay, primordial germ cells settle in the gonads from wall of yolk sac. We are coming to it. The undifferentiated ये point मैं cover कर चुकी हूँ, ठीक है. What are the germ cells layer present in the second week of the development? Epiblast and hypoblast. Just remember कि second week है, 2 है, तो 2 लेयर्स हैं, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. थर्ड वीक पे हमारे पास गैस्ट्रुलेशन हो जाएगी एंड वील हैव 3 लेयर्स, ectoderm, endoderm and mesoderm. Okay, now coming on to this primordial germ cell thing. Okay, first I want to show you guys this thing which I made already, ठीक है. ये एलेंटॉइस था, ठीक है. ये ectoderm है, ठीक है. यहाँ पर they mean to say somewhere here या somewhere here primordial germ cells will develop. अब इट्स इज नॉट इनसाइड द एम्ब्रियो, बट दिस इज एक्टोडर्म. एक्टोडर्म तो है लेकिन एम्ब्रियो का नहीं है, ठीक है. और यहाँ पर आई कैन नॉट शो, दिस इज 2D पिक्चर, आई एम नॉट एबल टू शो यू गाइज, लेकिन यहाँ पर जो है एक रिज होती है, गोनेडल रिज, जिसके अलॉन्ग जो है ये ट्रेवल करके और फिर ये नीचे पेल्विस तक आते हैं, ठीक है. दैट मीन्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म. सही है, दैट इज वाई एपीब्लास्ट का डेरिवेटिव का. अच्छा, primordial germ cells come from the extraembryonic ectoderm. Epiblast forms ectoderm, mesoderm, endoderm, and hypoblast जो है वो आपका yolk sac और बाकी structures बनाता है extraembryonic, ठीक है. Primordial germ cells originate near allantois of the embryonic yolk sac around third week and become evident by fourth week of gestation. By fifth to sixth week, these cells migrate through the mesentery to the gonadal ridge and eventually become gonads by sixth week. ठीक है, सही है. I'm gonna keep it paused over here for a while. Okay, now moving on to this. Okay, now embryogenesis, ठीक है. सबसे पहले I'll just give you an overview of all these things and then we can go read the points, so that will become like very easy for us, ठीक है.
ओके, फर्टिलाइजेशन वी ऑल नो, ठीक है, ये कोरोना रेडिएटा को एक जो है वो आ जाता है, ठीक है, हमारे पास sperm, ठीक है, and it pierces through this, ठीक है, because of the enzyme that will be present in the head of the sperm, that is the acrosome, ठीक है, और पीछे ये motility of the sperm is via fructose, ठीक है, और यहाँ पे जो neck होता है sperm का, I'm just giving this extra information because you have concepts here, इसमें mitochondria होता है, ठीक है, and this can then go to the daga, ठीक है, this provides energy for the motility of the sperm tail, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन हो गई है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इज क्लीवेज। क्लीवेज इज स्प्लिटिंग विदाउट ग्रोथ। द सेल्स आर डिवाइडिंग बट दे आर नॉट ग्रोइंग इन साइज, एंड दिस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, एंड दिस अकर्स, इफ यू प्रीवियसली रिमेंबर आई सेड कि फर्स्ट 2 वीक्स में होता है, ठीक है, हमारे पास। तो दिस इज द क्लीवेज विच इज स्प्लिटिंग विदाउट ग्रोथ, ठीक है, इट बिकम्स इवेंचुअली बिकम्स अ बॉल ऑफ सेल्स, ठीक है, एंड mind you this yellow thing is zona pellucida, okay, and it is still there, सही है। बॉल ऑफ सेल्स मलबरी लाइक, ठीक है, 16 to 32 सेल स्टेज, ठीक है। अब at some point they start to look different. These cells begin to differentiate. The outer cells will become the trophoblast and the inner cells will become the embryoblast. इससे our future embryo will be derived और trophoblast से placenta will be derived, ठीक है। अब ये zona pellucida is still there. Now it moves on to the stage of fourth stage, that is blastulation. A cavity appears that is known as the blastocele, hence the name blastulation of the stage, ठीक है। ये क्या हो रहा है? This is disintegration of zona pellucida, and why is it important? Because as long as this glycoprotein coat is over there, और एम्ब्रियो विल नॉट बी एबल टू इम्प्लांट, ठीक है। जब ब्लास्टुला के, तो रिमेंबर कि ब्लास्टुलेशन के स्टेज के बाद ये जब ये डिसइंटीग्रेशन हो जाती है तब हमारा एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, ठीक है। अच्छा, ट्रोफोब्लास्ट वी ऑल नो, आई एम नॉट गोइंग टू दैट डिटेल ओवर हेयर कि वो साइटो एंड सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट में डेवलप करेगा, ठीक है, और एचसीजी की डेवलपमेंट, एसीजी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर इम्प्लांटेशन। अच्छा, व्हाट इज दिस नाउ? ये जो कैविटी है, दिस इज एमनियोटिक कैविटी, ये सेल्स हैं, ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट की, एंड दिस इज बाई लेयर, वी कैन ऑल वेरी क्लियरली सी 2 लेयर्स। ये जो ऊपर वाली लेयर है दिस इज एपीब्लास्ट, ये इसका जूम्ड इन वर्जन है, ठीक है, और ये नीचे है हाइपोब्लास्ट। अब आई वांट टू शो यू द कट सेक्शन ऑफ दिस, मतलब ये इस तरह काट लिया एंड नाउ वी आर सीइंग इट लाइक दिस, ठीक है, ओके, मतलब इसका इट्स लाइक सैंडविच, आप इसको कट कर लें और फिर आप बीच से इसको देख रहे हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रिमिटिव स्ट्रीक, दिस फॉर्म्स और दिस फॉर्म्स, ये जो पॉइंट है, इट मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। यहाँ से सेल्स स्टार्ट टू इन्वेजिनेट और ये 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं। आई मार्क देम इन डिफरेंट कलर्स, ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, और नीचे हाइपोब्लास्ट इज स्टिल ओवर देयर, जो कि ये योक सैक और बाकी स्ट्रक्चर्स हमारे बनाएगा एलेंटॉइस वगैरह की, ठीक है। ओके, नाउ जूमिंग इनटू दिस थिंग, ये तो हमारे पास जो ऊपर एक्टोडर्म है इसमें न्यूरल प्लेट आएगी, लेकिन न्यूरल प्लेट को कौन सिग्नल भेज रहा है? नोटोकॉर्ड। ये मीजोडर्म जो सेंटर में, इट विल थिकन, it will form notochord. We'll come to the divisions of mesoderm अभी shortly, ठीक है। और ये जो है ऊपर सिग्नल्स भेज के, दिस इज नोटोकॉर्ड एंड दिस इज द ये न्यूरल प्लेट है, ठीक है, और नीचे हमारे पास एंडोडर्म है, ठीक है। दिस प्लेट विल स्टार्ट टू फॉर्म, टू कर्व इन, टू फॉर्म द न्यूरल ट्यूब, और व्हेन इट फॉर्म्स अ सर्कल, तो ये जो साइड पे ये जो एक्स्ट्रा रिजेस की पोर्शन रह जाते हैं, दीज आर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर डेरिवेटिव्स ऑफ सो मेनी थिंग्स, ठीक है। ये एज अर्लियर आई सेड फेरेंजियल आर्चेस में भी इनकॉर्पोरेट होंगे, ठीक है, डिफरेंट एड्रिनल मेडुला, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, ठीक है। Okay, when zona pellucida, this is just a written form of what I've just said, disintegrates, implantation is possible. Notochord in mesoderm influences neural plate formation in ectoderm. Notochord remnant, sorry, is the nucleus pulposus, ठीक है, जो कि vertebral body के बीच में होता है हमारे पास, सही है। And if abnormal, ठीक है, कुछ remnant वगैरह रह जाए तो it can form a benign tumor known as chordoma, ठीक है। Okay. Acha, primitive streak, which I said over here, which marks the beginning of formation of 3 layers, अगर उसका remnant रह जाए फिर क्या होगा? If that remnant is over there, the primitive streak usually disappears without any trace. Occasionally remnants persist in sacrococcygeal region of the embryo and give rise to teratoma.
नाउ यू रिमेंबर कि टेराटोमा में हर तरह के सेल्स क्यों होते हैं, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी, एंडोडर्म भी, क्योंकि ये जो एपीब्लास्ट की लेयर है इसकी इन्वेजिनेशन होती है प्रिमिटिव स्ट्रीक, जिसमें से तीनों हमारे पास डेरिवेटिव्स आते हैं, एक्टोडर्म के, मेसोडर्म के और एंडोडर्म के। ठीक है, अच्छा मेसोडर्म के जो मैंने डिविजन्स कहा था उसकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, सही है, ये है, ये ऊपर जो है हमारे पास रेड लाइन एक्टोडर्म को शो कर रही है। ठीक है, ये न्यूरल ट्यूब नीचे आ जाती है। अच्छा, अब भी हम कहते हैं कि एक्टोडर्म के सारे जो डेरिवेटिव हैं वो बाहर की तरफ, एवरीथिंग दैट मेक्स यू प्रिटी, ठीक है, इट्स निमोनिक, इट इज फ्रॉम एक्टोडर्म। ठीक है, हमारी स्किन, नेल्स, टीथ, एवरीथिंग। देन लेकिन विदाउट द एक्सेप्शन कि CNS जो कि अंदर है, ठीक है, बॉडी के, हाउ इज इट फ्रॉम एक्टोडर्म, बिकॉज यू सी कि ये इन्वेजिनेट होकर ट्यूब फॉर्म करके मीजोडर्म में आ गया। ठीक है, तो ये अब एक्सेस ऑफ द बॉडी भी बनाएगा एंड दिस इज द न्यूरल ट्यूब। ठीक है, इसकी साइड अभी इफ दिस इज द एक्सेस और इसके नीचे वाला मेसोडर्म क्या है, क्योंकि इट्स लाइंग अलोंग द एक्सेस, एक्सियल मेसोडर्म, इट्स द इजी वे टू रिमेंबर दिस। ठीक है, और इसको इससे ये वी ऑल नो कि दिस वाज द नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो इसको कॉर्डा मेसोडर्म भी कहते हैं व्हिच गिव राइज टू नोटोकॉर्ड, और जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क न्यूक्लियस पल्पोसस में चला जाएगा। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, अब मीजोडर्म के फर्दर डिविजन्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, दो साइड्स पर जो है दैट इज पैरा एक्सियल मीजोडर्म। ठीक है, फिर पैरा एक्सियल के बाद कौन सा है हमारे पास, इंटरमीडिएट मीजोडर्म। व्हाई इज इट इंटरमीडिएट, बिकॉज इट इज बिटवीन लैटरल प्लेट मीजोडर्म एंड पैरा एक्सियल मीजोडर्म। अब हर एक के डेरिवेटिव्स की तरफ आ जाते हैं। एक्सियल तो वी आर डन, पहले इंटरमीडिएट कर देते हैं। इंटरमीडिएट हमारे पास यूरोजेनिटल फोल्ड्स बनाएगा, जिसमें से किडनी, गोनाडल डक्ट सिस्टम एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स आएगा हमारे पास। ठीक है, ओके, फिर पैराएक्सियल मेसोडर्म से हेड बनेगा। ठीक है, और सोमाइट्स बनेंगे। सोमाइट्स में हमारे पास दो डिविजन है, स्क्लीरोटोम एंड डर्मोमायोटोम। डर्मोमायोटोम एज द वर्ड सेज, इसमें स्किन एंड मसल्स आ रहे हैं। स्क्लीरोटोम में बोन एंड कार्टिलेजन। स्क्लीरोटोम से हमारे पास क्या क्या डिविजन्स आ रहे हैं, वर्टिब्रे एंड रिब्स। एंडोटोम में एंडोथेलियल सेल्स एंड डॉर्सल एओर्टा, दिस इज एन एक्सेप्शन, स्टार इट ओवर हियर। ठीक है, दिस इज नॉट एनीथिंग बोन बट इट स्टिल डिराइव फ्रॉम द सोमाइट। ठीक है, आर्थ्रोटोम वर्टिब्रल जॉइंट्स एंड सिंडिटोम्स टेंडन। ठीक है, डर्मोमायोटोम में ऑब्वियसली दो डिविजन्स हैं, मायोटोम एंड डर्मोटोम। मायोटोम विल गिव राइज टू स्केलेटल मसल एंड डर्मोटोम विल गिव राइज टू द स्किन एंड द स्मूथ मसल्स। ठीक है, हमारे पास जो आएंगी। अच्छा, अब लैटरल प्लेट मेसोडर्म, इसका आप देख सकते हो कि दो प्लेट्स हैं हमारे पास, एक क्रेनियल है, एक कॉर्डल है। ठीक है, और ये बीच में कैविटी है, जो बीच में कैविटी है दैट इज इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, और जो ऊपर है दैट इज डॉर्सल सोमेटिक मेसोडर्म, क्रेनियल प्लेट, एंड दिस इज द वेंट्रल टूवर्ड्स द फ्रंट। ठीक है, वेंट्रल स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। ठीक है, इसके डेरिवेटिव्स क्या हैं, कमिंग हेयर, सोमैटोप्ल्यूर फ्यूचर बॉडी वॉल जो अपर है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज सोमैटोप्ल्यूर। ठीक है, पेराइटल सीरस एंड द सीरस लाइनिंग ऑफ ऑल द बॉडी कैविटीज। जो नीचे वाला है दैट इज स्प्लैंक्नोपोर। ठीक है, प्योर, that is pure, sorry, that is going to form the circulatory system, the blood vessels as well as the serous membrane around viscera. We all know कि जो हमारे पास पेरिटोनियम होता है वो दो होता है, एक पेराइटल होता है, एक विजरल होता है। तो सिंपल ये है कि पेराइटल मेसोडर्म सोमेटोप्ल्यूर से आ गया, और विजरो मेसोडर्म जो है सॉरी वो स्प्लैंक्नोप्ल्यूर से आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम विल गिव राइज टू कैविटीज ऑफ द बॉडी। तो हमारे पास कौन कौन सी तीन मेन कैविटीज हैं, पेरिकार्डियल है, प्लूरल है एंड पेरिटोनियल कैविटी है। दिस इज द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, अब नाउ वील गो टू द 3 लेयर डेरिवेटिव्स एंड आई विल जस्ट गो टू रीड द पॉइंट्स। ठीक है, ओके, सो पॉइंट नंबर 8 हमने कर लिया था, अब पॉइंट नंबर 10 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 10 में भी एक कॉन्सेप्ट है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक मेसोडर्म माइग्रेट्स टू द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड अराउंड क्लोइका। ठीक है, a rupture of this mesoderm cranially will produce ectopic anal opening. ठीक है, if the migration of ectopic primitive streak mesoderm cells does not occur around a cloacal membrane, it will rupture and open caudally as exstrophy of bladder. ठीक है, I just want to explain it कि how. ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है, ये नीचे स्ट्रक्चर है, ये एलेंटॉइस आ रहा है। ठीक है, ये क्लोइकल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास ब्लैडर है, और ये गट है, हाइंड गट, और सब कुछ वी नो कि क्लोइका में जा रहा होता है। दिस इज द यूरोरेक्टल सेप्टम। ठीक है, जो कि ये
इस जगह को यूरिनरी सिस्टम को गट से हाइंड गट से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अब क्रेनियल इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द हेड, ठीक है, और कॉर्डल पीछे की तरफ है, ठीक है। तो अब ये क्रेनियल अगर यहाँ पर रप्चर हो गया तो ये यहाँ पे कौन सी चीज आ रही है, एनस है, ठीक है। तो एक्ट्रोपिक एनल ओपनिंग होगी, एनल ओपनिंग जो कि यहाँ होनी चाहिए, इट विल फॉर्म ओवर हियर, ठीक है। और अगर ये आई एम सॉरी माय ड्राइंग इज नॉट दैट गुड, बट ये जो अगर कॉर्डली रप्चर हो गया तो ये ब्लैडर के सामने लाई कर रहा है, तो ये एक्सोस्ट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर करेगा बिकॉज ब्लैडर विल बी लाइंग आउटसाइड, ठीक है। इसके आगे जो वॉल होगी इट विल नॉट बी कंप्लीटली फॉर्म। दिस इज स्मॉल निमोनिक आई हैव मेड फॉर रिमेंबरिंग इट, क्रेनियल, सी रिमूविंग द आई इट्स एनल, ठीक है। तो ectopic anal opening by the cranial rupture of mesoderm over here, and caudal has U in it, so U is for urinary bladder, ठीक है। तो caudal rupture will lead to the exostrophy of the bladder, ठीक है। Okay, now coming back to this point, mesoderm defect cranially, ectopic anal opening, mesoderm defect caudally, exostrophy of the bladder, ठीक है। urothelium in the following condition will have the great chance to convert into carcinoma. Exostrophy of the bladder, we know it's a risk factor for the bladder carcinoma along with schistosoma hematodium, ठीक है, जिसकी तरफ हम आगे आएंगे in future points, ठीक है। Okay, point number 12 is, I'm just gonna rush through these points because I've explained the basis. Extra embryonic mesoderm derived from hypoblast, ठीक है, extra embryonic, सही है। Do not confuse yourselves with intraembryonic and extra embryonic. मैंने कहा है कि hypoblast जो है वो बाहर के structures बनाएगा, yolk sac वगैरह, तो वो extra embryonic mesoderm. Exocoelomic membrane is derived, everything that is outside exocoelomic, extra embryonic, ठीक है, that is from hypoblast, सही है। exocoelomic except for the extra embryonic ectoderm जो कि primordial germ cells को rise करेगा, ठीक है। exocoelomic membrane derived from hypoblast, space between splanchnic and somatic mesoderm is, ये लिखा हुआ है splanchnic and somatic is extra embryonic, लेकिन ये intra embryonic coelom है। I have reservations over this point, but for the पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन मैंने समझा दिया है, ठीक है, कि वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है क्योंकि हमारी बॉडी की अंदर की कैविटीज हैं वो, ठीक है। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम इज अ डेरिवेटिव ऑफ लैटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है, सही है। अब वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट खैर मूविंग ऑन। यूट्रस एंड द वजाइनल एपिथेलियम इज डिराइव फ्रॉम एंडोडर्म प्लस मेसोडर्म, जहाँ पे भी आएगा आपने दोनों ऑप्शंस को क्लिक करना है, एंडोडर्म प्लस मेसोडर्म, ठीक है। ectoderm, everything that makes you attractive, skin, hair, nails, breast, teeth, enamel. Exocrine glands, sweat, sebaceous glands, parotid gland, ठीक है। lacrimal, nervous system, ठीक है, मैंने बता दिया वो अंदर आ गया है, सही है सारा। फिर ये एंडोडर्म वही लाइनिंग ऑफ द ट्यूब है। फिर बीजोडर्म का देयर इज अ गुड निमोनिक ओवर हेयर, ठीक है, लेकिन मैंने एक एक करके उससे समझा दिया कि कौन कौन से डेरिवेटिव कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। मेनिंजीज वगैरह भी हैं, ठीक है। फिर इसमें जो है एंडोथीलियम मीजोडर्म प्लस एंडोडर्म है, ठीक है। इट्स ऑल जस्ट बेसिकली रीडिंग, मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, स्क्लीरोटोम वगैरह है, सही है। एंड दिस इज ऑल व्हाट हैज़ बिन थ्रू, ठीक है। कुफर सेल्स जो हैं, जितने भी मैक्रोफेजेस बेसिकली जो है ना वो मीजोडर्म से आ रहे हैं हमारे पास, सही है, मोनोसाइट्स वगैरह। तो कुफर सेल्स या जितने भी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल सिस्टम के सेल्स हैं दे विल डेवलप फ्रॉम द मैक्रोफेजेस, सही है। एंडोडर्म से हमारे पास लाइनिंग ऑफ द ट्यूब फ्रॉम द नोज, माउथ एंड ईयर टू एनस एंड यूरेथ्रा एंड वजाइना, ठीक है, लाइनिंग है सारी। और फेरिंग्स, थायराइड, ट्रीकिया, लंग, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, कोलॉन, लिवर, पैंक्रियास, ब्लैडर, तो इसी वजह से हेपाटोसाइट्स भी वहाँ से आ गए। थायराइड फॉलिकल्स आर फ्रॉम एंडोडर्म एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स आर फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है, जो अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी मैंने पीछे समझाया था उसमें से आ रहे हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स आर डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म बोथ, ठीक है। एंडोथेलियम ऑफ द वजाइना, mesoderm plus endoderm, urinary bladder, endoderm and mesoderm, transitional epithelium, endoderm. Now if there is option of endoderm plus mesoderm, please prefer that, ठीक है। nasolacrimal duct, ectoderm, ठीक है, it's on the outside. Epithelium is derived from ectoderm plus endoderm plus mesoderm because epithelium in तीनों layers से आता है depending upon the location, ठीक है। Do not confuse this point, सही है। urinary system derived from intermediate mesoderm जो कि मैंने explain किया है। ear pinna develops from mesoderm, ठीक है। फिर ectoderm and endoderm meet at caudal end forming cloacal membrane. Which amongst the following is a neuroectoderm? Ciliary epithelium, options are not given so I cannot say. Derivative of neural crest cell is dorsal root ganglia. Derivative of parotid fascia, stylomandibular ligament. So ये सारे रटे के points हैं, basic concepts जो हैं which I have given. Vertebrae is a derivative of sclerotome, ठीक है।
एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो हमारे पास मीजोडर्म से आ रहा है, आउटर पोर्शन विच फॉर्म्स द 80% ऑफ द ग्लैंड, एड्रीनल मेड्यूला 20% ऑफ द ग्लैंड फॉर्म करता है, न्यूरो क्रेस्ट से आ रहा है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप्स फ्रॉम डाइनसेफेलॉन, ठीक है, वो टीलेनसेफेलॉन ऊपर होता है जिससे फोरब्रेन आता है, फिर उसके बाद डाइनसेफेलॉन होता है, फिर मीजन, मीटन एंड माइन होते हैं, ठीक है। आई एम गोना एक्सप्लेन इट व्हेन वी गो टू द न्यूरो पोर्शन, ठीक है। ओके, किडनी आ गया, ठीक है, तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी डाइनसेफेलॉन से आएगा हमारे पास, ठीक है। और इंटीरियर लोब जो है, इंटीरियर जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, दैट इज फ्रॉम रेडकेस पाउच या स्टोमोडियम, ठीक है। बाइकॉर्न्यूएट यूट्रस इज प्रेजेंट विद पैथोलॉजी, एसोसिएटेड विद पैथोलॉजी इन किडनी, क्योंकि ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है जिससे किडनी बनेगी, और उसके साथ ही पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है जिससे फीमेल सिस्टम रिप्रोडक्टिव बनता है। तो अगर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट और मीजोनेफ्रिक डक्ट आर हाईली क्लोजली रिलेटेड, और दोनों को WNT जीन्स जो हैं ये कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके जो यूरियर जेनिटल सिस्टम है डेवलप्स टुगेदर, ठीक है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म से भी दोनों फोल्ड्स एक साथ आ रहे होते हैं। तो एक की एबनॉर्मेलिटी दूसरे की एबनॉर्मेलिटी को इन्फ्लुएंस करेगी, जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 14, हेपेटोसाइट्स डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म, कोफर सेल्स मेसोडर्म से आते हैं, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हेपेटिक एनस, सॉरी hepatic acinus, and glucokinase enzyme is present in hepatocytes, ठीक है। I'm gonna go into the detail of this when we cover the hepatobiliary portion, ठीक है। Okay.